Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Yeah, Bisham ji, I'm good good. morning. Bisham ji, good evening. Bisham ji, good evening. Good evening, everybody. We are going Good back. evening, Mr. Roy. बामरे जी गुड इवनिंग. Good बामरे evening, जी Prakash ji. Good गुड evening. इवनिंग. क्या है, बोरा साहब को दिखाई नहीं दे रही फोटो? थोड़ा सा Yes, दिखे I'm उन्होंने very विश much here. करा. Good evening, everyone. Bora uncle. Good evening, Karna evening. Sharma. Good evening, Angel. गुड इवनिंग Good everybody. Good evening, evening. Sandhya Good. aunty. Nina has Good evening, Mr. and Mrs. Bhamri. Hello, Good good evening, evening, beta. Roy. How are you? I'm good. I'm good. How are you? क्यों खेरा जी अब दिखाई दिए? Hi, good evening, everyone. Angel, can you hear me? Yes, ma'am. Just mute everyone so that Yes, we can ma'am. quickly Yes. start with the program. Yeah. Yeah, so once again, good evening, everyone, and a very warm welcome to all of you to Mo TV. And I know a lot of you have joined in, and there are some new entries also today. So we will just begin with the program first today, and then for all the new people who have joined in, welcome to Emoha and welcome to Mo TV. Today we will do the introductions at the end of the session because it's a little longish session, so we'll do that a little later. So as you all know that today is again a very special day wherein we have the spiritual and motivational community meeting today. And I feel that every time we have a community meeting, it is so lovely to see lot of people joining in. Normally we have an average strength of about 50 to 60, but this is one day whenever we have a clubs, whether it's Bollywood, whether it's spiritual club, whether it's the education club, it is so lovely to see more and more elders joining in and to have all of you here. So thank you so much for doing that, and thank you so much to all of you who make these communities a success for all of us here. So today, as you all know, with the spirit, Can I start? मैं आपको अभी hand over करती हूँ, अच्छा. Mr. Bora. Okay. Just give me 1 minute. So today, as you all know, it's spiritual and motivational community meeting today, and they have prepared a beautiful session for all of us, and I think the topic was really wonderful. Prarthana ki Shakti, the power of prayers. So just a few lines on that. प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन वो प्रार्थना करने वाले को बदल देती है. Prayers do not change God, but it changes him who prays. So our journeys through life are full of hardship, pain, and loss. Sometimes people attempt to find solutions in the very places that caused the calamity to befall us in the first place. They seek transient comfort in people and worldly objects, which will eventually falter and fail, leaving us broken again. We may seek medication or therapy and surround ourselves with people that make us feel heard and understood. But no tongue can speak what the heart feels, and no ear can comprehend what the heart feels. The disconnectedness we feel can sometimes cause people to simply lose hope and resign from the journey of life. However, God Almighty has provided us with the best tool of all, prayers. No prayer is complete without presence, says Rumi, and it is only through prayer that we can truly be present. It is only through prayer that we can truly feel connected. It is only through prayer that we can truly be heard, and it is only through prayer that we can truly submit. So to understand what it means to be present, what it means to be heard, and what it means to submit, so we present to you today the power of prayer. And for this, I hand over to Mr. Bora. Mr. Bora, over to you. Thank you, Ritu. So very nice lines about power of prayer you have said. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our spirituality and motivational slow.
आज की शाम somebody is unmute. Okay, let me start. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our spirituality and motivational show. आज की शाम हम प्रार्थना और भक्ति रस से भरने का प्रयत्न करेंगे। हमारे शो का टाइटल है पावर ऑफ प्रे, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी शक्ति है कि असंभव को भी संभव बना देती है। संपूर्ण विश्व ने इस तथ्य को स्वीकारा है। प्रार्थना हृदय से की गहराइयों से निकला ऐसा भाव है जो हमारे मन, विचार और आत्मा में अद्भुत शक्ति, शांति और सुकून भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम पिता से जुड़ते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना भी हमारे मन और आत्मा के लिए जरूरी है। प्रार्थना भरा हृदय विश्वास और प्रसन्नता से भरा रहता है। अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब है आपने ठीक से प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना आपकी सारी चिंताएं, डर और दुखों को समाप्त कर देती है। जिस हृदय से प्रार्थना नहीं निकलती, उस हृदय में प्रसन्नता, विश्वास एवं निश्चिंतता नहीं आ सकती। चाय पानी में डाल के बना दी तो चाय तो पापा ही बना देते हैं। कांटे पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। सुख में सब मिलते हैं, किंतु दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मैं अब संध्या चावला को बुलाता हूं, जो कुछ ऐसी कठिनाइयों से निकल कर आई हैं। उनकी प्रार्थना पर ईश्वर ने इंसान के रूप में समय समय पर उनकी सहायता की है। ओवर टू संध्या चावला। Thank you, Mr. Vora. Thank you. Good evening. Good evening, my all Imoha family members. Loving Ritu, my ARMs. प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं। मेरे साथ भी हुए कुछ ऐसे ही अनुभव हैं जिन्होंने मुझे एहसास करा दिया। बचपन से ही मैं ईश्वर को बहुत मानती, हर कार्य में उन्हें अपने साथ लेके चलती थी। मेरी एक आदत बन गई थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अपनी दादी जी से मुझे बहुत आशीर्वाद मिलते थे, जो आज तक काम आ रहे हैं। ऑफिस में सबसे हंसी मजाक करके चहकते रहने में सब मुझे बिंदास लड़की के नाम से जानते थे। प्रार्थनाओं का असर था मेरा कि 25 वर्ष की आयु में मेरी मैरिज जिनसे हुई हस्बैंड से, उनकी फैमिली पंजाब से बिलोंग करती थी। हस्बैंड जो मेरे थे वो दिल्ली में रहते थे, क्योंकि उनकी जॉब दिल्ली में थी। हम रेंट बेस्ड हाउस में रहते थे। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, यस यस। ठीक है, ठीक है। ईश्वर की कृपा से पहले ही साल में मुझे प्यारा सा बेटा हो गया और उसके 2.5 साल बाद मेरी प्यारी सी बिटिया हो गई। सब ठीक ठाक अच्छे से चल रहा था। अचानक मेरी मदर की डेथ 1992 में हो गई। हालांकि मैं उनको आखिरी समय मिल भी नहीं पाई, क्योंकि मैं इन लॉज को मिलने पंजाब गई हुई थी। अभी ये दुख से मैं बाहर भी नहीं निकली थी कि पूरे 1 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, जो 11 अक्टूबर 1993 को हुई, और 12 अक्टूबर 93 को मेरी 5th वेडिंग एनिवर्सरी थी। डेथ के समय मेरा बेटा 4.25 साल का था, बिटिया 2 साल की थी। जो ग्रीटिंग कार्ड मैंने हस्बैंड को गिफ्ट करने के लिए लिया था, वो मैंने उनकी डेड बॉडी को दिया। दुख मेरे लिए पहाड़ जैसा था, परंतु मैंने ईश्वर की भक्ति करना, प्रार्थना करना, उन पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। दर्द तो कम नहीं हो सकता था, परंतु दर्द सहने की शक्ति मिलने लग गई थी। मेरी मम्मी मुझे कहा करते थे तू बहुत नाजुक है, खांसी जुकाम होने पर भी छुट्टी कर लेती है। माँ तो देख नहीं पाई कि कितनी पहाड़ जैसा दुख मेरी 30 साल की बेटी को आ गया। दोनों ही दुख मेरे लिए बहुत असहनीय थे। मेरे पापा ने मेरी रीमैरिज करने की बहुत कोशिश की, परंतु मैं नहीं मानी। मेरी मदर इन लॉ कहती थी, बेटी बना के कन्यादान कर दूंगी, परंतु अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी। पापा अपने अनुभव से बिल्कुल ठीक थे, उनके ऊपर बीत रही थी। मेरी प्रार्थनाओं का असर ये हुआ, ईश्वर ने किसी अदृश्य शक्ति के रूप में आकर हर मोड़ पे मेरी मदद की। जैसे मैंने हस्बैंड की डेथ से पहले बिटिया को डे केयर सेंटर ना छोड़ना पड़े, तो मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया था।
ऑफिस वालों ने मुझे खाली नहीं बैठने दिया। उन्होंने 15 से 20 दिन के अंदर मुझे बोला आपको ऑफिस ज्वाइन करना है और हम तुम्हें खाली नहीं बैठने देंगे। दिल्ली जैसे शहर में मेरा मकान किराए का था, वो खरीदना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ईश्वर ने वो भी मेरा अपना करा दिया। मेरे इन लॉज का बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मुझे मिला, वो मेरे लिए ईश्वर की देन थी। मुझे ईश्वर एहसास करा रहे थे तू अकेली नहीं है, ना कभी अकेले होने दूंगा तुझे, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैं अपनी बेटी को इतनी अच्छी एजुकेशन देके अच्छी तरह से उसकी मैरिज कर पाऊंगी इस स्टेज में। ये सब मेरी प्रार्थनाओं का असर था। जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वो ईश्वर ने सच करा दिखाया। इसलिए मैं अपने परमात्मा को धन्यवाद करूंगी और उन्हें भूलूंगी नहीं जिन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। आखिर में सिर्फ यही कहकर समाप्त करूंगी, जे तू ना फड़दा साडी बां, जे तू ना फड़दा साडी बां, असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा साडी बां, असां रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी। ना नचदी टपदी ऐ जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। ना नचदी टपदी ऐ जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियां, जे तू ना देंदा खुशियां, असां रुल जाना सी, फिर किथे न लभदी थां, असां रुल जाना सी। संध्या जी बहुत ही अच्छा, संध्या जी वेरी बहुत अच्छा, नाइस। वेरी गुड। ईश्वर आपको ऐसी हिम्मत दे। बहुत बढ़िया, बहुत हिम्मत वाले हो आप। Great, 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 great. बहुत अच्छा लगा। ब्रेव, इंस्पायरिंग संध्या जी, सबको बोल्ड बनाता है, हंसने देता है। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। ईश्वर आपकी Thank हिम्मत you, सब बनाए आप लोगों रखे। के साथ मिलके फिर से वापस। थैंक यू सो नाइस। वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग। संध्या जी बहुत अच्छे संध्या। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ी हूँ, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ। दिस इज संध्या जी। थैंक यू सो मच संध्या, योर एक्सपीरियंसेस आर वेरी टचिंग एंड इंस्पायरिंग। थैंक यू। राइट, वेरी राइट। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, नीरजा जैन। ओवर टू यू नीरजा जी। Thank you. Namaskar. I am Nirja Jain. I believe in God and I pray every day. It gives me peace, calm and immense happiness. मेरा और भगवान का रिश्ता बड़ा कूल है। ज्यादा मैं मांगती नहीं, कम वह देता नहीं। बस छोटी सी प्रार्थना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, नेकी पर चले और बदी से डरे। Prayer is not an act, it is a feeling, a connection between us and God. It holds people, families, society and nation together. He is inside us, in our soul, and outside he is there in the whole cosmos. Earth, water, air, plants, trees, birds, animals, rivers, mountains, and many other elements of the universe. He is looking after us every moment. हल पहले देता है, समस्या बाद में। A praying man can never be miserable as he has fear of God. एक छोटी सी कहानी विश्वास पर सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण सारे में त्राही त्राही मच गई। पंडितों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए पूजा और यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ वाले दिन एक बच्चा छतरी लेकर आया। सब उस पर हंसने लगे। बारिश हो नहीं रही और तुम छतरी लेकर आए हो? बच्चा बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला,
हम सब मिलकर जब पूजा करेंगे तो इंद्रदेव खुश होकर पूजा बारिश जरूर करेंगे। इंद्रदेव बच्चे के विश्वास पर इतने खुश हुए कि उन्होंने बारिश की। प्रेयर में भावना और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बिना शब्दों के प्रार्थना हो सकती है, बिना भावना के नहीं। In Mahabharata also, Arjun had faith in Lord Krishna and Krishna had faith in Pandavas that they were fighting for a just cause. So Lord Krishna agreed to become Arjun's Sathi and showed him the way to victory. Dr. Varney Seeger, in his book Love, Faith and Healing, has written, prayer can heal a stage 4 cancer patient also. He has given many examples. मेरी आप भी थी. In my 74 years of life, life has thrown many googlies at me. My faith in God was shaken so many times. But when I counted my blessings, मीठा खट्टे से बहुत ज़्यादा था. I had a mentally challenged child. That was a very challenging time for me. I was feeling helpless and broken. I always used to ask God, why me? Why so much suffering? As if God heard me and He gave me another child and another. Happiness came back to my family. He became our special child and all of us could bring him very nicely with care and love. समस्या देता है, हल भी देता है. In the recent past, I had another setback when I lost my husband. I was shaken again as I could not imagine my life without him. He had given me a very shattered life, but my children and my family stood by me like pillars of strength and gave me strength and confidence, trying to bring me back to life. They were all perhaps God-sent angels helping me when I needed them most. Prayer has power. Prayers are answered, if not in 2 days, perhaps in 2 weeks, 2 months, or 2 years, or perhaps more than that. Have faith, have patience. Everything time has taken away, God is going to restore your health, finance, peace, and joy. Pray more, worry less. Thank you. Very good, बहुत अच्छा. Very well spoken. Very nice. Very nice. Very nice. Beautifully. बहुत अच्छा था. Very nice. Very nice. Beautiful. And ये नीरजा If जी the only prayer you say, if the only prayer you say in your life is thank you, Yes. it will be enough. But if you pray only when you are in trouble, then you may remain in trouble. Thanks Nirja ji for sharing your thoughts. हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास है. आपने मेरी प्रार्थना को तब भी सुना जब मुझे प्रार्थना के लिए शब्द भी नहीं मिलते हैं. मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, आभा सरदाना. आभा जी. आभा जी, are you there? Is Abhaji there? Abha Yeah, Sardana? Can you hear me? Can you hear me Yes. now? Yes, yes, we can hear you. Yes. Yeah, sorry. Yes, we can. I'm Abha Sardana. I recently joined IMOA and this is my, first few spiritual meets with you. It's very nice to be with you. Prayer and power of prayer, they are part of our life. As Neerja ji and Sandhya ji have said, कि हम जब बचपन से बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि घर में प्रेयर है, मंदिर में प्रेयर है, स्कूल में है, तो हम उसके साथ ही बड़े होते हैं और वो हमारा इंटीग्रल पार्ट हो जाती है प्रेयर. और हम जब भी जाते हैं हमारा उसमें इतना विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम ये मानते हैं कि वो जो सुपीरियर पावर है जो हमारे साथ है वो हमें इससे निकालेगी. और इसी में हम लोग इतने डिवोट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हे प्रभु, तू ही चलाने वाला, तू ही करने वाला, तू ही बिठाने वाला. तो प्रेयर जो है हमारा बहुत, और प्रेयर का एक्चुअल जो है वो हमारे मन से, हमारी डिवोशन से है कि हम कितने डिवोटेड हैं और किस में उसको, हर चीज़ में उसको ही देखते हैं
तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और वही हमें इन सब से बाहर निकालता है। हम अपनी आधी चिंताएं वरे से खत्म कर लेते हैं जब हम मानते हैं कि वो हमारे से सुपीरियर है और वो हमारा ही चलाने वाला है, और वो किसी भी रूप में हो सकता है, हमारे टीचर्स के रूप में, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे इष्ट देवता के रूप में, या हमारे गुरु के रूप में। किसी भी रूप में जब हम उसे हर रूप में देखना शुरू करते हैं तो हमें सब तरफ से उसकी शेल्टर मिलती है। इसकी एक बहुत सुंदर सी कहानी है, छोटी सी, जो मैं आपको बताती हूँ। एक लड़का था, बैठा था बाजार में, गुब्बारे बेच रहा था, गर्मी के दिन थे, बहुत परेशान था, हर किसी को पकड़ के कह रहा था प्लीज़ आप गुब्बारे ले लो। एक आदमी आया, उसने उसको बोला साहब ये आप मेरे से ले लो। उसने कहा ठीक है। उसने उसकी और देखा, कहा ठीक है मैं अभी लेता हूँ, तो 5 मिनट रुक। लड़का बेचारा एक साइड खड़ा हो गया गुब्बारे लेके। थोड़ी देर में आदमी आया, उसके हाथ में एक डिब्बा था, उसने जूते निकाले, लड़के को दिए, कहा तू ये पहन और फिर मैं गुब्बारे ले लूँगा। तो लड़के की आंखों में चमक, बहुत अच्छा उसको लगा। उसने फटाफट जूते पहने और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, कहा आप भगवान हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा लेकिन ऐसा क्यों कहा तुमने? उसने कहा मैंने इसलिए कहा कि मैंने कल रात को प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु मेरे पाँव बहुत जलते हैं इतनी गर्मी में, आप मुझे एक जूते दे दो। तो वो आप लेके आए हो, आप भगवान ही हो गए। उसने कहा नहीं मैं भगवान तो नहीं हूँ। उसने कहा तो भगवान के दोस्त हो गए, मेरे को उसने आपके थ्रू जूते भेजे हैं, तो प्लीज़। तो उसने कहा, वो आदमी की आंखों में आंसू, और उसने कहा नहीं बेटे भगवान हर रूप में है। तो ये स्टोरी हमें दिखाती कि प्रार्थना हम जैसे भी करें, कहीं भी करें, वो ऊपर वाला, वो परमेश्वर, वो किसी भी रूप में आता है, हमारी मदद करता है। वो किस रूप में आता है? दोस्त के रूप में, माँ बाप के रूप में, गुरु के रूप में, किसी अनजान आदमी के रूप में, लेकिन वो आता है और वो हम उसे पहचानना है कि वो किस रूप में आया। इस बच्चे का इसलिए भगवान लगा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। उसने कहा कि मेरी प्रार्थना जो है तुमने पूरी करी है, वो भगवान का। ऐसे ही हम जब अपने बचपन से बड़े होते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमारी प्रार्थना हम अपने बचपन में देखते हैं माँ बाप से पूरी होती है, गुरु से पूरी होती है, जब हम गुरु धारण करते हैं या इष्ट देव से पूरी होती है, वो किसी भी रूप में होती है। लेकिन ये हमारा विश्वास है। तो प्रार्थना सिर्फ मन का विश्वास है, आपका सरेंडर भाव है जो आप उसको अर्पण कर देते हो। जैसे संध्या जी ने बहुत कहा कि चलाने वाला कोई था, हर कदम पे हमारी मदद होती गई, हर कदम हमें किसी ने संभाल लिया। वो किस रूप में आया, कैसे संभाला, ये हमारा, और हम सब ने, संध्या जी ने, हमने, किसी और ने, किसी न किसी जिंदगी के मोड़ पे हम सब महसूस करते हैं कि हमें इन सब से उभारने वाली एक शक्ति है जो हम सबसे सुपीरियर है, जिसके आगे हम सरेंडर करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। ये पॉजिटिव, ये एनर्जी जो है, एक हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। ये थॉट ही हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है जो हमारी मेंटल, फिजिकल और मन स्थिति को बहुत स्ट्रांग बनाता है। अदरवाइज आप दुनिया के थपेड़े ही हम लोग खाते रहेंगे जब तक हमें किसी पे विश्वास नहीं है। जब हम, चाहे वो गुरु के रूप में मानिए, इष्ट देव के रूप में मानिए, जिसका जिस पे विश्वास है, लेकिन विश्वास ही आपकी प्रार्थना है, सरेंडर ही आपकी। और यही चीज हमें एक डिवोशन देती है कि हम उस रास्ते पे एक आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो जो प्रार्थना है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसकी पावर को हम हर कदम पे महसूस करते हैं, किसी एक कदम पे नहीं, किसी ज़िंदगी के किसी खास मोड़ पे नहीं। खास मोड़ तो मुश्किलें तो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन तो हैं सबकी, लेकिन किसी खास मोड़ पे नहीं। ये अगर हम देखेंगे तो हमें चारों तरफ उसकी प्रेयर की, उसकी पावर नज़र ही आएगी कि बहुत सुंदर, इतनी सुंदर दुनिया, अच्छे लोग, बुरे लोग, सब जो भी हैं,
वो सब उसी की दुनिया का हिस्सा है, हमारी दुनिया का भी यही हिस्सा है। तो ये जो कहानी है हमें यही सिखाती है कि हमें विश्वास रखना है अपने मन के अंदर, पूरा विश्वास। अगर हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो वो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना विश्वास है। हमारे अंदर में बसी हुई भावना है, उनको बात सुनो, हमारे अंदर में बसी हुई भावना है, ये हमें स्ट्रेंथ देती है, ये हमें स्ट्रेंथ देती है, ये हमें आगे चलाती है। हम बहुत प्लान करते हैं, लेकिन होता है प्रार्थना के हिसाब से, उसके हिसाब से जो चल। प्रार्थना सिर्फ दुख से निकलना नहीं, प्रार्थना भगवान का धन्यवाद भी है, हमारे से निकला हुआ ग्रेटिट्यूड है कि हे परम परमेश्वर, तुमने इतना कुछ दिया, इतनी जिंदगी चलाई कि शब्द नहीं आपका धन्यवाद करें। तो प्रार्थना हमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हम सब के अंदर है, हम सब करते हैं। और बचपन से हम लोग तो देखते ही हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, सब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना वे ऑफ लाइफ है, हमें आगे चलाने वाली चीज़ है। तो प्रार्थना से हमें खुश रहना आता है। हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है एक सुपीरियर पावर के आगे जो हमें पकड़ के चला रही है, हम चलते रहेंगे। हम इसका मतलब नहीं एफर्ट नहीं करेंगे, एफर्ट करेंगे, लेकिन डायरेक्शन उसकी होगी, वो एफर्ट हमारे तभी राइट डायरेक्शन में चलेगा। तो ये प्रार्थना जो है, कितना भी एक्सप्लेन कर लो, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना वे है, और सारे तरीके ठीक है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से करता है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रार्थना करते रहिए, उससे जुड़े रहिए, और हर समय सोते उठते बैठते खाने से पहले हर समय प्रार्थना करिए। वो आपके साथ है, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो अदृश्य पावर जो है आपको चलाती रहेगी, आपको पावर देती रहेगी, वो पावर आपकी ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ाती रहेगी। तो मेरा सबसे यही है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। हर किसी ने उसको किसी और रूप में, किसी भी रूप में देखा हो सकता है, लेकिन प्रार्थना एक बहुत ही स्ट्रांग चीज़ है जो आपको अंदर से स्ट्रांग करती है, आपके विश्वास को बढ़ाती है। तो इसको ज़रूर ज़रूर सब करें। तो मैं थैंक यू गौरव जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अभा जी, वेरी वेल एक्सप्लेन, वेरी 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 नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति थी, बहुत अच्छे से आपने सबको एक्सप्लेन किया, वेरी नाइस, वेरी वेल, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद very aptly spoken, Abha ji. Anji, And that was a beautiful story which you quoted with this, which you narrated with this. Thank you so much. A day without... Muted. I've been muted, sorry, I have to speak. Don't mute me, host. Okay, so a day without prayers is a day without blessings. And a life without prayers is a life without power. Thank you so much, Abha ji, for your lovely views. जितनी गलियां हैं शहर में मेरे, आज सारी सजा के रख दी हैं। श्याम रास्ता ना भूल जाए कहीं, मैंने आंखें बिछा के रख दी हैं। कृष्ण प्रेम में मीरा की दीवानगी को कौन नहीं जानता। चलिए अब हम सब कर्नल शर्मा के साथ मीराबाई की कहानी और भक्ति रस का आनंद उठाते हैं। ओवर टू यू कर्नल शर्मा। कर्नल शर्मा, आर यू देयर? इमो में लॉग इन किए हुए मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मीराबाई की, जिन्होंने प्रार्थना की शक्ति से अपने आप को उस शिखर पर पहुंचाया जहाँ पे कृष्ण भक्तों का नाम लिया जाता, तो सबसे पहले मीराबाई और सूरदास जी का नाम लिया जाता है। मीराबाई जी का जन्म राजस्थान की पाली डिस्ट्रिक्ट में राजघराने में हुआ था, और शादी तो उससे भी बड़े घर में हुई थी। बड़े योद्धा, फियर्स वॉरियर रहे हैं राणा सांगा, उनके घर में शादी हुई थी उनके बेटे से। लेकिन वो बचपन से ही अपने आप को कृष्ण की भक्ति में लीन रखती थी। तो राणा सांगा ने
बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी अकबर की सेना के साथ, 1 लाख सोल्जर्स लेके गए थे। वो कहते हैं वो वाली लड़ाई अगर वो जीत गए होते तो हिंदुस्तान के राजा बनते राणा सांगा। तो इतने बड़े घर की बहू मंदिरों में जाके तो भजन गाए नाचे तो राणा जी को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कैसे प्रेयर की प्रार्थना की शक्ति से मीरा जी सरवाइव करती रही वो आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। तो शादी के 5 साल बाद, उनके हस्बैंड का नाम था भोजराज सिंह, तो शादी के 5 साल के बाद भोजराज की उसी लड़ाई में जो मुगलों के साथ हुई थी उनकी मृत्यु हो गई। फिर तो मीरा जी के पास थोड़ा और समय हो गया, वो पूरी तरह ही अपने आप को मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई उसमें अपने आप को डुबो लिया उन्होंने। तो राणा जी काफी खिन्न हुए और राइटफुली तो उनको मरवाने की भी कोशिश की। 2 बार जहर शरबत में डाल के उनको दिया गया, तो वो तो कृष्ण भक्त थी तो वो पी गई, उनको तो पता भी नहीं था कि इसमें जहर भी होगा, पी गई लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। और एक बार फूल मंगवाए तो फूल की टोकरी में जहरीला वाला सांप भी डाल के भिजवाया, लेकिन जब तक उन तक पहुंचा वो सिर्फ उसमें फूल ही फूल थे, सांप तो पता नहीं कहीं गुम ही हो गया। तो इस प्रकार से वो अपनी प्रार्थना की शक्ति से सरवाइव करती रही और बड़ा कहते हैं बड़ा अच्छा गाती थी। 500 साल पुरानी बात है, 1498 में उनका जन्म हुआ था, 500 साल हुए। तो फिर उन्होंने घर ही छोड़ दिया, फिर वो वृंदावन चली गई। बहुत फॉलोइंग थी, एक हाथ में एक तारा, सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एक तारा, और दूसरे हाथ में झांझर बोलते हैं जिसको, खड़ताल, वो बजा के वो कॉम्बिनेशन में बड़ा अच्छा गाती थी, नाचती थी। और कई भजन लिख डाले जो अभी तक पॉपुलर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तो हेरी में तो प्रेम दीवानी, बड़ा दर्द न जाने कोई, दूसरी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा जो तुम छोड़ो पिया मैं नहीं छोड़ू। मीराबाई की लाइफ के ऊपर 2 पिक्चरें बनी बॉलीवुड में, एक तो गुलजार साहब ने बनाई जिसमें हेमा मालिनी ने मीरा का किरदार किया, और वो उनके भजन तो तकरीबन 20-25 पिक्चरों में अलग अलग टाइम पे कभी कौन सा मीरा बन के गाया। आज भी लोग अपनी लड़कियों का जो सुशील बनने की जिनकी उम्मीद करते हैं, लड़कियों का नाम मीरा रखते हैं बड़े प्रेम से, चाव से। तो अभी तो उनकी डेथ हुई 40 साल की उम्र में, फिर तब तक वो द्वारका आ चुकी थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्राण त्याग दिया द्वारका में, द्वारकाधीश के मंदिर में। अभी मैं सुनाता हूँ उनका लिखा भजन, जो तुम तोड़ो पिया। एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, कंप्यूटर फॉल्ट। I'll get back. आ रहा हूं। तो 2 स्टैंजे थे तो मैं एक गाऊंगा क्योंकि इसमें जो समय निकल गया है उसको मैं पूरा करूंगा, एक ही स्टैंजा गाऊंगा। जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूंगे, तोरे संग लागी कृष्णा हम संग जोड़ूंगे। जो तुम तोड़ो पिया मैं नाही तोड़ूंगे, तोरे संग लागी कृष्णा हम संग जोड़ूंगे। तुम भय तारुवर मैं भई पत्तियां, तुम भय सरोवर मैं भई मछिया, तुम भय गिरवर मैं भई तारा,
तुम भय चंदा प्रभु जी, मैं भय चकोरी। सुनो वे गोपाल, सुनो वे गोपाल, जो तुम तोड़ो किया मैं नाही तोड़ूंगे। तेरे संग लागी कृष्णा, तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे शर्मा जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, लवली। The song was also very, very beautiful. Kanna sir, very soulful, very soulful. थैंक बहुत यू, बढ़िया। थैंक यू। ये आपने पावर ऑफ प्रेयर का जीवंत उदाहरण दिया है। महलों में पलने वाली, जोगनपन रहने वाली, मुख से सिर्फ एक शब्द कृष्ण कृष्ण कहने लगी। थैंक्स कर्नल शर्मा। बहुत सुंदर, बहुत जब सुंदर। जब और सहारे छिन जाते हैं, ना कोई किनारा मिलता है, तूफान में टूटी कश्ती का भगवान सहारा होता है। हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दे कि मैं जिंदगी की सारी मुश्किलें, सारे दुख आपकी कृपा। आपका म्यूट हो गया शायद बोरा जी। हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दे कि मैं जिंदगी की सारी मुश्किलें, सारे दुख आसानी से पार कर पाऊँ। अब आपके सामने रेस्पेक्टेड मिस्टर अरुण रॉय अपनी लाइफ में पावर ऑफ प्रेयर के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ओवर टू अरुण जी। Namaskar. Good evening to everybody. Today we are discussing power of prayers. Prayer is the direct communication of human being to God, the Supreme Commander. When we are pushed to the corner, when we cannot get help from any side, when all our resources are dried up, then we turn to pray to the Almighty, the Omnipotent, who only has the power for a miracle to happen. There is a super intelligent being who must have created this universe. We call this super intelligent being or energy as God. Same way as we go up a mountain and reach the top through various routes, we reach the same supreme God through various paths like Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, etc. Whenever human beings started polluting this world with hatred, cruelty, brutality, barbarism to others, God appeared amongst ourselves in the form of a normal human being like Krishna, like Rama, Christ, Muhammad, Buddha, etc. to bring us back to pious paths. God is only one in various forms. Our paths may be different, but we pray to the same energy that is God. Prayers calm down our nervous system, reduce the stress and anxiety. It stops negativity and spreads positive energy to our mind. We get composed from the absolute breakdown condition. My father-in-law, Dr. Rabindranath Roy, was a reputed nuclear scientist. During his postdoctoral research at USA, he met with an accident, presumably pushed off the second floor open terrace by a rival scientist who was envious of his name and fame. My wife was only 5 years old at that time. But the prayers of my mother-in-law and all family members to God Almighty helped the doctors to save his life. By God's grace, his brain did not get affected and he carried on his research work in nuclear physics and retired as the head of the Department of Shah Institute of Nuclear Physics at Kolkata. Although he was a scientist and he used to meditate, and I have seen him going into deep meditation when apparently we appear to be totally senseless. Now, apart from regular routine prayers, I turned to God whenever I needed help from him. During my development work for several machines and equipment first time in India, whenever I was stuck
I prayed to God for a solution. Suddenly, from nowhere, I received the solution when I just woke up from sleep or reached the end of the tunnel. Now, who gives these solutions? It is God who helps you when you earnestly pray to Him. Today, I shall talk on two such occasions which happened in my life. In a flight from Dusseldorf to Paris on a cloudy and rainy day on a small 11-seater aircraft, I had a fright of my lifetime. First 15 minutes of the flight was fine. Then came the worst I ever faced in hundreds of flights I've taken in my life. We got a warning from the pilot that we are approaching a storm and we should put on our seatbelts. That's normal. The body of the small aircraft was rattling as if it will break to pieces, and the tiny aircraft was being thrown up and down in the air like a toy. Many passengers were shouting, crying, and praying. Many vomited. I was also thoroughly shaken up. I was constantly praying to God so that we may survive. This went on about 15 to 20 minutes, and I almost thought that we are all going to die. I was thinking of my wife and children and praying earnestly to God to save us. Finally, after about 20 minutes, the pilot told us over the microphone that we have passed the stubby patch. We all thank God for surviving the short death. The constant prayer gave me a strength to bear this crisis. In the second incident, our younger son, Bishwajit, who is 2 years younger than Shomajit, went through a kidney transplant operation. Both my elder son, Shomajit, and I offered our kidneys for a transplant. His mother-in-law also offered her kidney. I was praying to the doctors and God to select my kidney first and keep his mother-in-law in the second priority. I did not want Shomajit to offer his kidney, although he was too much bent on this same thing. This because of the reason that I was not willing to have both my sons to live on one kidney each. I prayed to God day and night. Finally, Dr. Kuhler or Max agreed to my proposal of trying any of the older person's kidney first. Again, after a lot of tests, they selected his mother-in-law's kidney to be transplanted. Mine was rejected because of my more age and low values of urine flow rate, as well as my recurring kidney stone problems. Finally, 25th April 2019 was decided for the operation. We had informed all our near and dear relatives and friends. My daughter also had come from Malaysia. On 25th April, both of them were taken to the operation theater at 8:40 a.m. We all waited in the lobby and prayed constantly to Almighty God for a successful transplant. His mother-in-law's operation was first over at around 1 p.m. and Bishwajit's operation was over at 4:30 p.m. Nobody was allowed to meet them. We were finally allowed to meet his mother-in-law, but we could only see him through glass windows. Next 2 to 3 days went into deep anxieties and prayers. His creatinine levels came down from about 9 slowly to about 2.2 in 3 days. His mother-in-law was released on 29th of April and Bishwajit got released on 2nd of May 2019. Now, almost 2 years have passed. Bishwajit now lives in a very, very controlled lifestyle. Recently, his creatinine levels are again going up and he may have to go for a regular dialysis. But we keep praying to God every day for his well-being. Beyond this, we just can't do anything. I request all of you to pray for his life. Joint prayer is very, very powerful. Thank you so much. We are all praying for him. We will all pray, yes. Roy sir, we will keep on praying. We will keep on praying. Thank you so much. Thank you so much. We shall pray. We will be doing daily prayers. From now on, we will सामूहिक be प्रार्थना में doing बहुत शक्ति होती है. Yes. Wonderful. सब मिलकर करेंगे. Mr. Roy. Whatever you and Soumya is doing, definitely all the elders will pray for you. Thank you so much. Yes, yes, surely. All the blessings will come because Over to Soumya Nita. is doing so much for elders. So Yeah. all the blessings will fall from the I'm Almighty. sure. All Yes, of I'm you. sure our prayers will be, our combined prayers will definitely be heard. Sure. Your experiences were very touching and they teach us that अपनी परिस्थिति ईश्वर को सौंप दें, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं
उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकते हैं. Thank you so much for sharing your profound and touching experiences with us, Mr. Roy. And we feel very honored today to have you in this show with us. Thank you so much. We are honored. बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है. हमारी नेक्स्ट स्पीकर है मोना रॉल्स्टन, जिन्होंने कभी हालात से हार नहीं मानी. Over to you, Mona ji. Thank you. Thank you, Neeta and Vora ji. Thank you and welcome everyone here and good evening. Prayer, power of prayer. सबने बहुत कुछ अच्छा बता दिया, थोड़ा बहुत रह गया वो हम बता सकते हैं. बहाना आंसू भुला दे हर गम कि तेरा हमदम तेरा खुदा है, नहीं जो साथी ये सारा आलम, तू ये है क्या गम, तेरा खुदा है, तेरा खुदा है, Here we have gathered here to listen to people power of prayer. सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि मीनिंग ऑफ प्रेयर. तो मीनिंग ऑफ प्रेयर मतलब जैसे कि we request, always we request for something. प्लीज हम बड़ी प्रार्थना करते हैं ये काम. तो we apply for many things. एप्लीकेशन फॉर्म को हम कहते हैं प्रार्थना पत्र है. तो दुनिया में हम दुनिया के लोगों के सामने कितनी प्रार्थना करते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा लोन, मेरी बच्चे की शादी, मुझे नौकरी मिल जाए, ये सब में हम दुनियावी लोगों के सामने करते हैं. पर हम खुदा को ज्यादातर नहीं याद करते, ज्यादातर नहीं याद करते, और उसी टाइम याद करते जब हमें कुछ चाहिए होता है. तो हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि और हम क्या करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, इसके पास उसके पास, वो हमारी सुनेगा वो, लेकिन नहीं, हम खुदा के पास नहीं जाते हैं, जो कि ही इज ऑलवेज लिसनिंग टू अस. तो माय एक्सपीरियंस प्रेयर, मेरा भी एक्सपीरियंस है. तो जब बच्चे छोटे थे, एरिक डैडी को नवोदय, तो हमारी मदर इन लॉ रोज रात में सोते टाइम, जो कि हम लोग के यहाँ तो ये एक तरह सा वही है कि मतलब हर दिन प्रार्थना करना है, हर सवेरे हर रात, खाने से पहले सोने से पहले हमेशा. तो बच्चों को वो दुआ करवाती थी. तो हमारा एक केस चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ. हमारी नौकरी में थोड़ी परेशानियां भी आई, केस चल रहा था, और हमारे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी. तो मदर इन लॉ को पेंशन नहीं दे, जो सरकारी कामों में देर तो होती है, तो काफी थोड़ी परेशानियां थी. तो हमारी मम्मी जो थी मदर इन लॉ, बच्चों से कहती थी रोज रात में बोलो, खुदा बाप से मांगो कि मम्मी का केस जीत जाए और दादी को पेंशन मिलने लगे. तो रोज ये दोनों, एरिक डेरिक और ये छोटे थे, 4-5 साल के होंगे, रोज ये रात में ये दुआ करते थे. और फिर हमारा केस भी जीत गए हम. 1 साल लगा, काफी टाइम लगा, उनका पेंशन भी मिलने लगी. तो बच्चों के मन में बचपन से आ गया, यार हाँ, प्रेयर से तो वाकई काफी हम लोग ने प्रेयर करी. बच्चों की प्रेयर हमने बताया कि बच्चों की प्रेयर खुदा सुनता है, क्योंकि बच्चों का मन बिल्कुल पाक और साफ होता है, इसलिए बच्चों की दुआ खुदा जल्दी सुनता है. यही हम उनसे कहते रहे. अब हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी यही कहते कि जो तुम दुआ करोगे हमारी सुनेगा, हमारी भी, लेकिन तुम्हारी पहले सुनेगा. ऐसे बचपन से इनके मन में आज तक, और हम सब दुनिया को बताते ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन हम बहुत खुश हैं और हम प्राउड हैं इस बात पे कि हमने जो कुछ भी हम लोग बताते हैं और हम भी बताते हैं लोगों को, वो हमने कर चुके हैं. जो कर चुके हैं वो ही बता सकते हैं, क्योंकि ना ट्राइड एंड टेस्टेड. अब किससे दुआ करें, इसके लिए कहानी छोटी सी बताएंगे कि एक फकीर था और राजा के दरबार में एक टाइम फिक्स होता था कि इतने बजे से इतने बजे राजा मिलेंगे और फरियादी लोग आते थे, फरियाद सुनेंगे. तो ठीक है, वो भी गया. काफी देर हो गई, अभी तक राजा आ ही नहीं रहे, और 2 घंटा हो गया. उसको बहुत लगा कि क्या हो गया, कहाँ है. उसने मंत्री पूछा, इनसे पूछा,
दरबान से कहा नहीं नहीं राजा अभी बिजी हैं ये वो। तो उसने कहा जाके झांक के देखूं क्या किस काम में बिजी। देखा राजा तो दुआ कर रहा है, ए खुदा ये कर दे मेरे जीवन में ये वो, जो कुछ भी वो मांग रहा है, कुछ ना कुछ मांग रहा है। तो कहने लगा अरे ये जिससे तो हम मांगने आए वो तो खुद ही किसी से मांग रहा है, तो हम ही ना मांग लें उससे। तो फिर उसने ये कहानी मतलब हमने इसलिए बताई कि हम लोग क्या करते हैं, दुनियावी लोगों के पास जाते हैं। काफी कोई साधु कोई फकीर बड़े पहुंचे हुए हैं, उस चर्च में जाओ, उस मंदिर में जाओ, उस पहाड़ पे, उस नदी में जाओ तो ये होगा वो। हम लोग भूल जाते हैं कि खुदा हर वक्त तैयार है, he is ready to listen to us, but we are not giving him time, enough time, बल्कि देते ही नहीं है। enough क्या, हम देते ही नहीं टाइम है। और हम हमेशा सोचते हैं कि पहले नहीं उनके पास जाने से हमारा काम पूरा होगा। हम दुनिया के जंजालों में फंसे रहते पर खुदा को भूल जाते। और एक बात ये है कि जैसे बीमारी या दुख जो भी हमारे पर पड़ता है तो बाद में डॉक्टर कहता है अब सिर्फ भगवान के हाथ में। क्यों बाद में, क्यों भाई, पहले क्यों नहीं? शुरू से हम क्यों नहीं करते हैं प्रार्थना? हम अपनी जवानी के दिनों में क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं? बचपन में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम सिखाते बच्चों को कि प्रार्थना यू हैव टू प्रे। जैसी भी भाषा नहीं, खुदा तो सब भाषा जानता है, तो उसमें भाषा पे भी ध्यान नहीं देना। हम किस समय प्रार्थना करें, अरे अभी तो हमने नहाया नहीं, अभी हम पूजा नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि खुदा तो हमेशा सुन रहा ना, वो तो हमारे हर वक्त हार्ट एंड ही लुक्स इनटू आवर हार्ट, कि इसके दिल से कुछ दुआएं हमारे दिल से निकलती, हम बोलते भी नहीं है। तो जब वो कोई काम पूरा हो जाता है हम कहते हैं हाय हमने तो ये सोचा था, ये मेरा पूरा हो गया। इसका मतलब कि खुदा तो हमारे दिल की इच्छाओं को जानता है और वो ये भी जानता है कि व्हाट इज बेटर फॉर अस, वो वही करता है। इसीलिए हम दुआ करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और एक और बात, मन को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि मन में खुदा बैठा है और वो मन देख रहा है। मन ही हमारा गंदा रहेगा, इधर तो चर्च में है, गए बहुत प्रार्थना ये सब करके निकले बाहर, अरे देखो कैसे देख रही, देखो उसके बाल कैसे, उसका ये, बस शुरू हो गया बाहर निकलते साथ। तो क्या फायदा फिर ऐसी दुआ से? तो इसलिए हमारा मन भी हमेशा साफ रहना चाहिए। और एक और बात हम बताना चाहते हैं, विश्वास सब जानते हैं कि हाँ जिस पे हम विश्वास करते हैं वही बात पक्की होती, लेकिन हम आशा छोड़ देते हैं। विश्वास किया, अरे हमने तो दुआ करी, हाँ हमें पूरा विश्वास है, लेकिन जैसे ही दुआ खत्म करके हम सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हाँ देखो शायद हो जाए। अरे जब तुम्हें विश्वास है तो फिर तुम आशा क्यों छोड़ते हो? हमें आशा भी रखनी चाहिए, विश्वास के साथ आशा बहुत जरूरी है। अंत में मैं यही कहूंगी कि खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। थैंक यू। बहुत अच्छे मोना बहुत जी, बढ़िया मोना जी, बहुत बढ़िया मोना जी, वेरी गुड, कमाल कर दी, बहुत बहुत खूबसूरत। proof of power. Amazing Mona aunty, lovely. वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी बहुत ही सरलता आप तो से बोलती हो ना तो हम बच्चे सहज की तरह लगता है, शब्दों में, सुनते जाएं आपको यूं करके। बिल्कुल मन के उद्गार हृदय से बहुत। निकले हुए। वेरी गुड मोना जी। आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना, खुदा जरूर मिलने आएगा, बस अपने दिल। वो सुबह आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो गए। आप आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना, खुदा जरूर मिलने आएगा, बस अपने दिल का दरवाजा खुला रखना। थैंक्स मोना जी। डूबने का डर मुझे हो तो कैसे हो, मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा। हमारी नेक्स्ट स्पीकर नीता रावल, जो कठिनाइयों से संघर्ष करते करते जीवन में आगे बढ़ी। ओवर टू नीता रावल।
म्यूट हैं आप, म्यूट हैं नीता, फिर से स्टार्ट करो। आपको रिक्वेस्ट भेजा मैम मैंने। I've unmuted. Thank you, Mr. Bora. कहते हैं कि भगवान नजर नहीं आते, लेकिन हकीकत ये है कि एक वही तो नजर आते हैं जब और कोई नजर नहीं आता। स्पेशली जब कोई दुख तकलीफ आती है, तब तो बहुत जोरों से, बड़ी शिद्दत से नजर आते हैं, है ना? अभी हमने आप सभी के प्रेयर्स को लेकर अलग अलग एक्सपीरियंस, विचार, भाव और फीलिंग्स के बारे में सुना। प्रेयर्स आखिर है क्या और ये कैसे काम करती हैं? प्रेयर्स आर सीकिंग गॉड्स फेवर, जिसको हम रहमत भी कहते हैं, pouring your heart and soul to God। बेसिकली हम कह सकते हैं कि गॉड से बात करना ही प्रेयर्स है। इट्स योर रिलेशनशिप विद गॉड। प्रेयर्स करने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मकसद या मंजिल कहीं ना कहीं सेम है। प्रेयर्स हमें कैसे हेल्प करती हैं? प्रेयर्स आर पॉजिटिव अगर वो हमें फोकस करने में हेल्प करती हैं, अपनी जिंदगी का पर्पस या मकसद ढूंढने में मदद करती हैं, हमें मॉरल, पेशेंट, टॉलरेंट, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं, और हम अपना हर कर्म इस अवेयरनेस के साथ करने लगते हैं कि मैं जो भी ईश्वर से मांग रहा हूं या मांग रही हूं, उससे कहीं किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा है। मेरे किसी भी कर्म से किसी और को कोई दुख या तकलीफ तो नहीं पहुंच रही है। प्रेयर्स करते वक्त आपकी इंटेंशंस सही होनी चाहिए। अगर किसी वक्त हमारी कोई प्रेयर्स काम नहीं कर रही हैं, तो हमें बैठकर उस सिचुएशन को रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए कि इस सिचुएशन में कुदरत क्या हमें कोई लाइफ का लेसन या लर्निंग तो नहीं देना चाह रही। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि प्रेयर से ब्रेन का वो हिस्सा जो कंसंट्रेशन, फोकस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह को कंट्रोल करता है, वो बहुत डेवलप हो जाता है। जो लोग प्रेयर्स और थैंकफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं, उनमें डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत कम मिलते हैं। स्ट्रेस और बीपी भी काफी कंट्रोल में रहता है, और ओवरऑल वेलबींग एंड फिजिकल हेल्थ भी बेटर रहती है। जो लोग कंसिस्टेंटली प्रे करते हैं, उनमें अनहेल्दी बिहेवियर्स जैसे हेवी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, झूठ बोलना, धोखा देना, चीटिंग करना वगैरह कम पाया जाता है। प्रेयर्स में डर नहीं, प्यार होना चाहिए। हम ईश्वर से जिद मत करें कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, या ऐसा होना ही चाहिए। ईश्वर से जिद नहीं, समर्पण या सरेंडर की भावना होनी चाहिए, और ये विश्वास कि जो वो हमें देंगे वही हमारे लिए बेस्ट होगा। बिकॉज प्रेयर्स एंड फेथ गो हैंड इन हैंड। आई विल एंड हियर विद अ लिटिल प्रेयर। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे। मुझे शिकवा न हो कभी भी किसी से, हे ईश्वर मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। वेरी गुड, Very well. Very nice. Very nice. Very nice. बहुत बढ़िया। Truly बहुत अच्छा था। Well spoken. Well spoken. Very well. Thank you everyone. Very nice, Tati. वेरी नाइस नीता जी। नीता जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा नीता जी। Thank you so much बहुत everyone. बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम मेडिटेशन की ओर चले। The mind is subject to wear and tear because there is too much distraction in this world. So we need to enhance our mind and thoughts with sadhana or meditation. प्रार्थना में भगवान हमारी सुनते हैं, और मेडिटेशन में हम भगवान की सुनते हैं। Over to Neelu
to conduct the meditation. Neelu, over to you. आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ध्यान में उतरने से पहले कुछ मूवमेंट्स करते हैं। अपने हाथों को झाड़ें, हाथों को ऊपर ले जाकर झाड़ें। सामने से हाथों को फैलाकर झाड़ें, अच्छे से झाड़ें। जैसे सांप अपनी केचली उतारता है, झाड़ता है, वैसे ही आप अपने सारे दुख, दर्द, तकलीफ, तनाव सबको झाड़कर दूर करें। अब विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। अपना ध्यान श्वासों की यात्रा पर लगाएंगे और अब अपनी आंखें धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बंद करें। We pray when we are in wisdom. When we pray, the consciousness expands. It rises to another plane, another dimension. It is so fulfilling, intuitive, and so full of love and peace. Let's become prayerful. Renew our strengths and experience space and energy within us. Take a deep breath in. Hold the breath inside as long as you can. And gradually breathe out. When we sit to meditate, our mind wanders. Let it be. It is very normal. We are in a journey now, from sound to silence, from movement to stillness. जैसे जल में मछली रहती है, वैसे ही हवा में हम रहते हैं। Become aware of the air around us. हवा के होने से हम जीवित हैं। श्वास के होने से देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्वाद लेने का और बोलने का
ये सब काम श्वास से ही होते हैं। श्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर एक गहरी सांस लें, भरें, अपने सामर्थ्य अनुसार रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। छोड़ दें सारे श्रम, सारे श्रम, आपके सिद्धांत, आपका ज्ञान, आपकी चेष्टा, आपके अनुभव, तर्क वितर्क, सब छोड़ दें। शरीर में होने वाली तरंगों को अनुभव करें। एक मीठी मुस्कान चेहरे पर बनाए रखें। मुस्कान झूठी भी है तो कोई बात नहीं। आंखें बंद रखें, विश्राम करें। You are sitting with pleasant mind in a pleasant mode. Any little discomfort here or there, let it be. कोई हलचल, असुविधा या संवेदना हो रही है तो होने दें। उससे लड़ना नहीं है, हटाने की कोशिश भी नहीं करनी है। स्वीकार करें। इस पल हमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़ें, पूर्ण विश्राम करें। मस्तिष्क का काम है विचार करना और हमारे मन का विचारों में भटकना बहुत सामान्य है। हमारे मस्तिष्क में भी विचार बादलों के जैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना है। आप ध्यान में हैं, आप स्थिर बैठे हैं, आप ईश्वर की गोद में बैठे हैं। आप ना विचार, ना भाव, ना ही आप शरीर हैं। आपकी आत्मा आकाश है, आप स्वयं आकाश हैं।
विचारों के बादलों को हम रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं और ना ही हम उनसे उलझते हैं। Simply watch your breath. If your mind wanders, gently bring it back to your breath. Your breath is your anchor. Keep coming back to your breath. Every incoming breath is energizing your body, and outgoing breath is relaxing your body. फिर एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। ओम। ओम ब्रह्मांड की प्रथम प्राकृतिक ध्वनियां। ओम एक पारंपरिक पवित्र प्रतीक। ओम जिसमें पूरा ब्रह्मांड है, सृष्टि का सार है। ईश्वर का नाम भी ओम है। ओम यानी प्यार और शांति। प्रकृति में हर जगह, समंदर में, झरनों में, पहाड़ों पर, जंगलों में, शंख के नाद में और हमारे हृदय की धड़कनों में, सब जगह ओम की ही ध्वनि है। ओम के उच्चारण से ब्रह्मांड की ये 3 ध्वनियां हमारे शरीर की 7000 नाड़ियों को तरंगित करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार व संचन करेंगे। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। एक गहरी सांस लें। ओ। एक और गहरी सांस लें। ओ। एक बार और गहरी सांस लें। ओ। अपने वातावरण और शरीर के प्रति सजग हो जाएं और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं।
Very nice. Thanks, Very Neelu. nice, Neelu. मन ही नहीं कर रहा था. आंखें खोलने का तो मन नहीं करता to meditation. Very, very nice. Very nice, Neelu. You conducted it very beautifully. ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी दुनिया में पहुंच गए. Don't feel like opening your eyes. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Neelu ji, beautifully done. Beautiful. वो गुनहगार की दुआ भी सुनता है. बात मायूस नहीं होंगे. उठाकर तो देख, कोई रास्ता नहीं एक दुआ के सिवा, क्योंकि कोई सुनता नहीं एक खुदा के सिवा. थैंक्स नीलू जी. अब मैं इसको क्लोज करते हुए फाइनली 4 लाइनें एक प्रेयर की सुनाना चाहूँगा. सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं उसकी महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं. अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा. I and Neeta Rawal, co-moderator, are thankful to all participants and group members for making the show successful. Thanks to Renu Dhawan also for helping us and guiding in preparation of this show. I also thank Imoha team Ritu Batra and Leena Singh for support in conducting the show. And now we can hand over it to Mo TV host. Thanks to all. Very nice. Thank you so much, Mora uncle. It was lovely and also Very good. Very nicely done. Thank you. Very and nice. Very nice. Thank you. You also were the very well conducted. Thanks all for the patiently hearing. Yeah, very well conducted. Thank you, Neeta. Thank you. Thank you, Neelu ji, for meditation. Thank you, Mora ji. Thank you. Mora ji. Thank you, Neelu. Thank you. Thank you जी. It was lovely and मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, मैं जब भी आती हूँ मुझे नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं. सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से दोबारा मिलके एंड आई होप मैं दोबारा ज्वाइन भी कर पाऊँ आप लोगों के साथ. और ये जो लिटरली ऐसा लग रहा था कि हमें कई बार ऐसा हो जाता है कि मेडिटेशन हम लोगों को मिल नहीं पाती, बट आज लिटरली सेशन ज्वाइन करके आई फील सो रिलैक्स. सो थैंक्स टू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर द मोरा जी आपने जितना घबरा रहे थे बहुत सुंदर कंडक्ट किया. एंड ऑल्सो नीता जी वाज वेरी गुड. आप लोगों के होते हुए घबरा नहीं रहा था, आप लोगों के होते हुए बस आपको हम घबराने देते मोरा जी सच्ची में बहुत अच्छा किया आपने. बहुत अच्छा नीता जी. पार्टिसिपेशन से अच्छा हुआ संध्या जी. मुझे भी लग रहा था, मैं सोच रही थी बोरा जी इतने वो हो रहे हैं और इनका शो अच्छा जाना चाहिए, बस कहीं पे भी टेक्निकल प्रॉब्लम है. मेरी हेल्प करने वाले बहुत हैं. Thank you. We all love you. It was a teamwork. Actually, it was a teamwork and it was with the Mora. It was an excellent program. Thank you. Thank you so nice. कुछ ना बोले, हम तो भाई बहुत घबरा रहे थे और हमारी ब्लड शुगर हो गई थी 200. ना जी आप तो बोलते रहते हो, आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए, आप तो पार्टिसिपेट करते हो. तो सॉरी ऐसे बैठ के सुनने को दिल होता है कि बोलती जाए. जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो घबरा रहे थे, जो पार्टिसिपेट नहीं करते. मेरी शुगर 250 हो गई थी. Good evening, Bora ji. This is Nandita Dasgupta here.
Beautifully executed. Beautifully executed. I'm sorry, I just had to, stop the video because there was my husband had just come in and I was a little busy. So otherwise, I was following throughout. Very beautifully done. Okay, good. You have started listening to people now. Excuse me. Raviji is saying something to me. I said, finally you have started coming after my scolding. Yeah, because, I believe that, you scolded me because अपनापन जब होता है तब डांटते भी हैं. Seriously. अच्छा भी कहते हैं. Otherwise you can't. So sweet of you. अपनापन नहीं होता ना तो ये आप करते नहीं मेरे साथ, ठीक है? और जो किया तो उसको मैंने रेस्पॉन्स भी दिया वैसा. I know. आपको मान रखा. Thank you. I'm obliged. No, I'm actually. Rashmi ji, you can try to say something. Don't take it seriously. ये हेल्प करने वाला इतने अच्छे से मुझे किसी को डांटना नहीं. रश्मि जी कुछ काफी देर से बोलना चाह रही हैं. Let's listen to रश्मि जी. रश्मि जी. Yes, रश्मि जी बोलिए. वोरा जी और नीता जी, आज की शाम इतनी सुखद शाम निकली. हर एक स्पीकर ने इतना अच्छा बोला, हर एक स्पीकर ने, और इतना आनंद आया कि आत्मा में शांति हो गई. बहुत बहुत धन्यवाद वोरा जी, नीता जी, और जितने स्पीकर हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू रश्मि जी. थैंक यू सो मच. रश्मि जी, कमिंग फ्रॉम यू. थैंक यू. आपने अच्छा, मतलब हमारी तरफ से कुछ नहीं सबके लिए. मैंने ना छत्ते पे हाथ डाल दिया. प्रवीण, कर्नल प्रवीण, I also noticed. Mona Roshan, and thank you all of you. हेलो. बहुत अच्छा कंडक्ट किया. बहुत आप लोग अलग से मेरे कान खींच लेना. ये लो. थैंक यू सर. आपने बहुत अच्छा लिखा, उसको बहुत अच्छा कंडक्ट किया. वोरा जी, आप देखो कितने अच्छे हो. आज मिस्टर अरुण रॉय जी भी हमारे प्रोग्राम में आए. We are feeling so honored. We are really glad. Thankful to him, and we will praying for. आप लोगों को तो इतनी ब्लेसिंग होगी. मिस्टर रॉय आए हुए हैं. बिल्कुल. यस, बिल्कुल. थैंक यू सो और मच. स्पेशली हम ब्लेसिंग्स भगवान से उनके लिए मांगेंगे. कैन आई रिक्वेस्ट मिस्टर रॉय कि आप हमारा बॉलीवुड का भी होगा तो प्लीज आप आइएगा उसमें भी. जॉइन अस. बॉलीवुड में मेरा नॉलेज एब्सोल्युटली जीरो है. नहीं, but you can. नहीं, हम आपका we will entertain you in that, ना. So nice. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We need your presence, sir. We need your presence, sir, only. Yes, that is more important. Thank you. So I hope ये evening बहुत अच्छी रही. Yeah, Angel, it was very very nice. Very nice. सब relax mode में आ गए हैं. Everybody spoke so well. हाँ, यहाँ से मैं कर दिया. Thank you, Mr. Roy. लीव आ गया, बंद कर. Thank you. हमारी एंजल ने होस्ट किया आज. थैंक यू. थैंक यू. नहीं, मुझे खुद मिलने का मौका मिला आप सबसे दोबारा, तो ये मेरा हमारी एंजल क्या? हमारी सबकी एंजल है. कह रही हूँ हमारी एंजल, हमारी सबकी एंजल में हमारी एंजल. आपकी तो भाई यू पीपल सुपीरियर पीपल हो आप. नहीं, हमारी में हम सब की तो कह रही हूँ. मैं सबकी. परवीन जी के गिले शिकवों के बिना पूरा नहीं होता सेशन. कल नहीं आई थी परवीन जी, मैं मिस कर रही थी. परवीन जी नहीं आए. कुछ तो तड़का होना चाहिए ना. लग सकता है, लेकिन वो जिस पोस्ट के लिए लड़ रहा है उस पोस्ट के प्रतिद्वंदी का सेकंड प्रपोज नहीं कर. कौन है? कल लग रहा था परवीन जी सेशन में नहीं आए थे, तो लग रहा था कुछ मिसिंग है. कल? हाँ, लग रहा था मिसिंग है. कल थोड़ा काम था बहुत. मैं समझ गई थी, लेकिन लग रहा था कमी फील हो रही थी कल. आज भी मैंने छोड़ा काम टू अटेंड. Thank you. So honored. We are so honored, Parveen ji. Thank you so much. Thank you. नहीं, it's not. It's my privilege to Angel, take charge. सब लोगों से ही तो टीम बनती है. मैं मौका ढूंढ रही हूँ कि आप लोग बातें बोलने नहीं दे रहे हम. Praveen want to say something, please allow. हाँ, बहुत इंटरेक्शन हो गई अभी. एंजल टेक चार्ज. शर्मा को बहुत थैंक्स. बहुत प्यारा बोला आपने, बहुत प्यारा गाया भी. तो बोलना चाह रहे हैं.
हाँ बोलिए बोलिए फिर से कर्नल बोलिए। शर्मा अगर दूसरा स्टांजा भी गाते तो और अच्छा लगता। यस, इतना अच्छा चल हो रहा था। बहुत बढ़िया बोलने दो, बोलिए। आई होप आप सबने एंजॉय किया हो एंड सॉरी टू से बट अभी जाने का टाइम हो गया। आई होप हम सब लोग दोबारा मिलेंगे। आप लोग तो सब लोग कल मिलोगे मोटिवी सेशन में, सो आई होप मैं भी ज्वाइन करूं, देन विल ऑल मीट टुमारो एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली सेशन। अगला मॉडरेटर तो लगा नहीं, नेक्स्ट मॉडरेटर, नेक्स्ट हाँ मॉडरेटर तो बताओ कौन है? संध्या नहीं मेरे को संध्या जी, संध्या मैं आई एम डूइंग दैट बॉलीवुड। नजर नहीं अभी मेरी बारी नहीं हो सकती, मैं नहीं अभी कर पाऊंगी, मेरे को मेरे को उड़ा दिया, अपनी बारी नहीं हो सकती। देख लेना कितना अच्छा रॉक जाएगा आपका, देख लेना। वो तो है बस अच्छा जाएगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते। नीलू को दे दो जी, नीलू को दे दो। प्रवीण जी काम सारे आप करो, मैनेजमेंट मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका बहुत अच्छा जाएगा। लड़े नाम कप्तान दा नहीं पर ये नीलू को दे दो, बिकॉज़ आई हैड बीन मैनेजर ओनली। I am suggesting Mrs. नीलू श्रीवास्तव को मॉडरेटर बना दिया जाए। सुरेश जी क्या बोल रहे हैं? सुरेश जी कुछ कह रहे हैं भाई, सुन लो। I can be part of it. I can take one. I will be speaker, but I cannot take the whole program. I'm so sorry. Why not? Why not? No, Renu. At least you should not say this. Why? मैं 3 बजे रोज लौट कर 3 साढ़े 3 लौट के साथ हम हैं, रेनू जी के साथ हम हैं। नीलू चलो बकअप। हाँ नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। I cannot. अभी 1 महीना है अभी। नहीं still. अभी जी रुके रहो, अभी with Renu जी whoever you will take my name, I can be one speaker. एक्सपीरियंस लोग हैं अब नीलू। अच्छा, what about नीरजा जी? रेनू, कोरा जी, everyone is with you. Why are you so jittery? नीरजा जी किधर? हेलो रीटा। हाँ रीटा जी is there. I can be one of the speakers in the next program. नेक्स्ट किसको लें? नीरजा जी, आभा जी हैं, नीरजा जी। आभा जी बहुत अच्छा बोले, आभा जी को करो। आभा को दे दो। आभा जी का ही बोलने लगी थी मैं, आभा जी को दे दूं। You will be the next moderator. Next moderator. चलो आभा सरदाना फाइनल। अरे नहीं ग्रेट। हाँ जी बिल्कुल आभा जी। हाँ आगे नीलू। एवरीबॉडी। लो जी आप तो आई एम ऑलवेज देयर राइट ऑन टाइम। हाँ अब तो वीडियो लग गया आपका। रितु आज आपने हमारे वाले प्रोग्राम में नहीं थे रितु। नहीं वो सुन रही थी भाई। आई नो बट मैं सारा कुछ संध्या आंटी रितु मैम ने आप लोगों के लिए मुझे भेजा था ना, इसीलिए तो। नहीं वो तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। Very sweet of you both. वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ऐसे लगा रितु की आवाज ही नहीं आई अभी तक बिल्कुल भी। Ritu, I just said that when you would have seen the program and you will come back, I would also like to join and listen to you because आज हमने आपकी आवाज नहीं सुनी, तो we are missing. So sweet, so sweet. Neeta ji, we are missing you, and I am going to actually tell you that you are getting back on it, whether you like it or you don't. I already. We all like it. We all love it. Yeah. Taking a little break. That's it. नीतू जी आपको रिकॉर्डिंग देखनी है। ब्रेक लेना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी नीता जी यहाँ पे। कोई फैमिली से ब्रेक नहीं लेता है कोई भी, या तो फैमिली है या नहीं है। कभी-कभी ले सकते हैं। अभी बहुत इमोहा फैमिली की वजह से ना अपनी मम्मी बहन सब छूटे हुए हैं, तो उनको भी टाइम देके थोड़ा सा खुश कर लूं, उसके बाद रितु ये रिकॉर्डिंग इसकी देखनी है और मैं फिर 2 दिन बाद पूछूंगा देखी कि नहीं। मैं 100% आपको देख के मैं कल ही इसका वो दूंगी, पॉइंट पूछ के कि देखी। एब्सोल्युटली 100%। कम फॉर द रिव्यू। नहीं बट नीता जी मैं आपसे खुद अभी पर्सनली बात करने वाली हूँ, एंड आप चाहे प्रोग्राम एक ऑल्टरनेट भी मिस करोगे कोई बात नहीं, मैं वो मैं कर लूंगी, ठीक है ना। Okay. So but thank you so much everyone once again for a lovely session. मैं बीच में सुन भी रही थी and I heard a few, पूरा मैं of course नहीं सुन पाई, but like I said I will hear everything by tonight or maybe by tomorrow morning. So but I know हमारे elders कैसे हैं सारे, and I know each and every, and the best part is संध्या जी, a big thank you to you, क्योंकि आप हमेशा कहते हो मैं नहीं करूंगी मुझे नहीं आता, but you spoke so well and so beautifully. And मुझे पता है मैं पार्टिसिपेट नहीं करती और मेरी क्या हालत हो रही थी, सच्ची बता रही हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में ऐसी आती थी संध्या जी,
I was told to just, do more TV in on March 24th, and मैं भी करते I've reached where I am today. And I think all of us have been. मैंने अपनी डॉटर को बोला था कि मैं स्कूल टाइम के बाद अब पार्टिसिपेट कर रही हूँ. So lovely, and thank you. अब आगे से करते रहिएगा. Thank you. Yes. मैं नहीं करूँगी. Yes, बिल्कुल. Everybody has to participate. Yes. कैसे भी, चाहे 2 लाइनें, चाहे 4 लाइनें, चाहे half a line, we don't, it doesn't matter. So can you please announce the next moderator? Ava Sardana among us. Yes, for the next show, Abhaji, everybody will be helping you. You don't have to worry. Yeah. A lot of people have already gone through it, and it's just about making sure that the meetings happen, nothing else, and rest everybody is as helpful as they can be. Even the topics and all are like by everyone's help, you all give suggestions, and then a final topic is picked up with the same consensus. So I'm sure you will not face any problems, and we are always there to help you. And Ritu, can I request you to say the people who have joined today, आज इतने लोगों ने join किया है कि they should also come up, आगे आए अपने पर्दे से निकल के, so that we should know them and they should also participate. Absolutely. I have seen a lot of new people who've joined in today. Let me also tell you all that we broke the record today. Yes, we 94 had 111. No, Boraji, clap. 11. Boraji, clap. 1 minute. Let me announce the figure, please. Yeah. The figure was 111 today. Wow. Wow. I have seen. Lucky number. It's a lucky number. 111. Yeah. 111. I have seen once 117. Okay, मैंने 113 देखे थे. मैंने 113 देखे थे. 113. Let me take a medium figure and say 115. So whatever it is. इसीलिए मैंने कहा. Thank you all. But wonderful, really great. बहुत बढ़िया. That we had, and it is such a great pleasure to see so many people joining in. And I hope all those people who have joined in, you really enjoyed the show and I liked it. And let me tell you all that we do have speakers coming in from outside. We do have sessions we conduct for all of you, wherein you all participate. But the best shows are the community shows where our elders presented to the other elders. And everybody is participating in it and coming up with a program. And to see all of you is, really something beautiful. So thank you so much for joining in. And I hope that you keep joining in all the sessions. And I know I have not been able to. And also keep participating. Yes, everybody has to participate. And next time, I hope that we have all new, names, all new faces who are participating in this. And let me tell you, it is a family. We are not here to showcase the best or this thing that, flawless. Even if we make mistakes, even if we, are not, we feel normally everybody is very good, but हमारे अंदर एक डर होता है कि नहीं मुझे तो इतना आता नहीं है or something like that. But ऐसा होता नहीं है, so please do try and join in. So with that, sorry, I will not take the introductions today. मैं आपको thank you करना चाहूँगा कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली कि इंट्रोडक्शन बाद में करने का. उससे 2 मिनट पहले शुरू हुआ और हमने भी 2 मिनट पहले खत्म कर दिया. हमारा शेड्यूल बिल्कुल ग्रेट. तो मैं अभी इंट्रोडक्शन इसीलिए नहीं कर रही because it's already 6:40. So we will end here today. But all those who joined in new, I hope that you all join in tomorrow also and for the musical evening. And we will do the introductions for all of you tomorrow so that everybody can come to know you. So request you all to join in tomorrow also. So with that, thank you so much everyone for joining in, and thank you so much Mr. Bora for a wonderful session and all the speakers who did such a fantastic job. And see you all tomorrow morning at 8 o'clock for the physiotherapy, and then we see you at 5 o'clock for our musical evening. So till then, keep smiling and keep praying. Thanks, Ritu. Thank you, everyone. I really enjoyed the program. Thank you, Parveen ji. Coming from you, it's very special, Parveen ji. So sweet, really. No, it's a fact. Fact, such बोलना ही चाहिए. Good night, everyone. Take care. Good night. Thank you, Angel.
Hello, Angel, and bye, Angel. थैंक यू एंजल। एंजल जल्दी जल्दी और प्रमोट करो, हमारी ब्लेसिंग है तुम्हारे साथ और फाइटिंग And thank you once again, Mr. Roy. We are very, very privileged and very, very honored to have you around today. थैंक यू ऑल। मैं प्रोग्राम में इतना खो गया था, मुझे पता नहीं था एंजल है, मैं लीना समझ रहा था। बताओ, इतने खो गए थे। It's okay. Meditative हो गए। Okay. बहुत meditative हो गए थे। बाय बाय। चलो, Bye everyone. हाँ जी। Bye everyone. Good night. Bye. Good night.